અમદાવાદના જુંડાલ ખાતે શ્રી અનુપ સ્વામી મહારાજની ઝૂંપડી ખાતે 26મા વાર્ષિકોત્સવ નિમિત્તે ભવ્ય શોભાયાત્રા સાથે સત્સંગ સમારોહ યોજાયો। જળ, જમીન અને સમગ્ર જીવન સૃષ્ટિને બચાવવાના મહાઅભિયાન સાથે કાર્યરત શ્રી અનુપ મંડળ દ્વારા વિશ્વ કલ્યાણના હેતુથી સમગ્ર દેશમાં ભજન, સત્સંગ સાથે લોક જાગૃતિના કાર્યક્રમો કરવામાં આવે છે। જે અંતર્ગત માગસર સુદ બીજ નિમિત્તે શ્રી અનુપ મંડળ ટ્રસ્ટ જુંડાલ દ્વારા શ્રી અનુપ સ્વામી મહારાજની ઝૂંપડી નકલંગ ધામ ખાતે સંતો મહંતોની ઉપસ્થિતિમાં 26મા વાર્ષિક મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં દેશભરમાંથી હજારો અનુયાયીઓ, ટ્રસ્ટના હોદ્દેદારશ્રીઓ સહિત જુંડાલ ચાંદખેડાના ભાવિક ભક્તો મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા હતા। આ પ્રસંગે અનુપ સ્વામી મહારાજની ઝૂંપડી ખાતેથી ડીજેના તાલે સુશોભિત બગી સાથે ભવ્ય શોભાયાત્રા યોજાઈ હતી, જે જુંડાલ તથા ચાંદખેડાના વિવિધ વિસ્તારોમાં ફેરવવામાં આવી હતી, જેમાં સંતો મહંતો, સામાજિક આગેવાનો, મહિલાઓ, યુવાનો સહિત ભાવિક ભક્તો ભારે હર્ષોલ્લાસ સાથે ભક્તિભાવ સાથે જોડાયા હતા। આ પ્રસંગે નકળંગ ધામ જુંડાલ ખાતે ભોજન પ્રસાદ સાથે સંતો મહંતો અને ભજનિકો દ્વારા ભજન, સંતવાણી અને ભજન સત્સંગનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। આજના સત્સંગ સમારોહમાં રાજસ્થાનથી પધારેલા અનુપ સ્વામી મહારાજના અનુયાયી ગોવિંદસિંહ દેવડાએ અનુપ સંપ્રદાયની પરંપરા અને સિદ્ધાંતો સાથે અનુપ મંડળ ટ્રસ્ટ દ્વારા વિશ્વ કલ્યાણ માટે કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિઓ અંગે વિસ્તૃત માહિતી આપી હતી। આ પ્રસંગે પધારેલા અખિલ ભારતીય ગૌ સંવર્ધન પરિષદ ન્યૂ દિલ્હીના અધ્યક્ષ શ્રી અવધૂત નારાયણી મહારાજે આજના પ્રસંગે આશીર્વચન આપતા જણાવ્યું હતું કે 9 ગુણોવાળી ગાય માતાની રક્ષા અને સંવર્ધન માટે સમગ્ર દેશમાં ગૌ માતા રાષ્ટ્રમાતા વિજય રથયાત્રા યોજવાની જાહેરાત કરી હતી અને સાથે સાથે જ જૈન મુનિઓ દ્વારા જૂનાગઢ તેમજ અન્ય હિન્દુ સનાતન ધર્મના ધાર્મિક સ્થાનો પર અતિક્રમણ કરવામાં આવી રહ્યું હોય જેવો આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો હતો। આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત વૃંદાવન ધામ ન્યૂ દિલ્હીના મહંત શ્રી મનમોહનદાસજી મહારાજે ભારે હૈયા વરાળ ઠાલવતા હાલની કેન્દ્રની સરકાર ધર્મના નામે ફૂટ ડાલો રાજ કરોની નીતિ સાથે રાજ કરી રહી હોવાનું પણ જણાવ્યું હતું। વધુમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે ગૌ હત્યાના નામે સરકાર મુસલમાનોને બદનામ કરી રહી છે, જ્યારે હૈદરાબાદ અને અન્ય જગ્યાએ હિન્દુઓ દ્વારા કતલખાના ચલાવવામાં આવી રહ્યા છે। આજના સત્સંગ મેળાવડામાં જોડાયેલા જમાતે હિન્દુના સેક્રેટરી શકીલ અહેમદે પોતાના વક્તવ્યમાં જણાવ્યું હતું કે અમારી જમાતના મુસલમાનો માનવતા, કરુણા, પ્રેમ અને ભાઈચારાની ભાવના સાથે ભારત દેશને મજબૂત કરવા માટે પ્રયત્નશીલ છે। અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે દર વર્ષે યોજાતા આ સત્સંગ મેળાવડામાં હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ સહિત દરેક ધર્મ સંપ્રદાયના સંતો, મહંતો અને ભાવિક ભક્તો કોઈ પણ નાત જાતના ભેદભાવ વિના આ સમારોહમાં ભાગ લેવા આવતા હોય છે। ત્યારે ટ્રસ્ટના હોદ્દેદારશ્રીઓ અને સ્થાનિક સત્સંગી ભક્તો દ્વારા સમગ્ર કાર્યક્રમનું સુંદર સંચાલન કરવામાં આવ્યું હતું। गोविंद सिंह देवड़ा, मैं राजस्थान में पालड़ी गांव जिला सिरोही का रहने वाला हूं और जन्म से अनूप स्वामी जी महाराज का अनुयायी हूं। अनूप स्वामी जी महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से ऐसा जाना कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी हो रहा है, जो कुदरत करती है, कुदरत के खिलाफ कोई न कोई एक ऐसी शक्ति है जो सुदीर्घ काल से इस पृथ्वी पर करती आ रही है और उसी पाप की वजह से कुदरत का जो स्थिति है वो डावाडोल होती है, क्योंकि कुदरत किसी को भी किसी प्रकार की कोई सज़ा नहीं देता है। कुदरत का जो एक ऐसा पाक नियम है कि उसमें जो जन्मता है वो अपनी पूरी उम्र पा करके और ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो भी लोग कच्ची उम्र में मरते हैं, बाबूजी ने लिखा कि कच्ची उम्र में जो मरते हैं वो कोई न कोई राक्षसी पाप की वजह से मरते हैं, क्योंकि पहले जब राजा रावण राक्षसी पाप करता था तो उस समय में लोग कच्ची उम्र में मर जाते थे और रावण ने राक्षसी पाप से मैं और मौत को अपने कब्जे में कर लिया था और लंका जो सोने की बढ़ाई थी। इसी प्रकार से रावण के मारे जाने के बाद भी इस पृथ्वी पर जब कच्ची मौतों का होना बरकरार रहा तो फिर बाद में कृष्ण जी महाराज ने पता किया कि भाई ये कौन इस पृथ्वी पर पाप कर रहा है, तो कृष्ण जी महाराज ने कंस को मारा। कंस के मारने के बाद भी इस पृथ्वी पर पाप का करना जारी रहा। तब अनूप स्वामी जी महाराज ने देखा कि रावण, हरणाकंस, कंस, कारुण ये सारे मारे गए, लेकिन फिर भी पृथ्वी पर पाप का होना बंद नहीं हुआ। इसका मतलब असली पाप के करने वाले नहीं मारे गए। तो अनूप स्वामी जी महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से, अपने तप से, अपने योग से ये जाना कि इस प्रकृति का जो संतुलन है वो स्वतः ही डावाडोल नहीं होता है
और पूरा संसार आज कोई भी काम हो रहा है वो प्रकृति के ऊपर थोप देता है कि कुदरत ने किया है, ईश्वर ने किया है। बाबूजी का कहना है कि ईश्वर किसी का भी बुरा नहीं करता है। ईश्वर का ऐसा पाक नियम है कि जो वो अपनी कुदरत से जो चीज़ बनती है वो अपनी पूरी उम्र पा करके ख़त्म हो जाती है। लेकिन जैसे उदाहरण इस प्रकार से है कि जिस प्रकार से आप अपने घर में अगर एक पेड़ लगाते हैं और उस पेड़ के पत्ते अगर पतझड़ के मौसम में गिर जाए तो आपको किसी किस्म का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन कोई शख्स आकर के सब्ज पत्तों को अगर काटने लगे तो जो मकान का मालिक है या पेड़ को जिसने लगाया है उसको किस कदर दुख होता है। तो जब एक उस मानव को इस प्रकार से दुख होता है, अपनी बनाई हुई चीज़ को वो अपने हाथ से बिगाड़ना नहीं चाहता, तो ईश्वर इतनी बड़ी चीज़, ईश्वर तो कभी किसी चीज़ को नहीं बिगाड़ता है। और ईश्वर के ऊपर जो ये थोप रहे हैं ये हमारा भ्रम है, ऐसा अनूप स्वामी जी महाराज ने जगत हितकारिणी में लिखा है। इसीलिए अनूप मंडल जो संस्था है वो सरकार से ये मांग कर रही है कि सरकार अनूप स्वामी जी महाराज द्वारा रचित जगत हितकारिणी के जो तथ्य हैं उनके ऊपर गहनता से रिसर्च करें और उनका पता लगाएं। धन्यवाद। राधे राधे, जय बिहार जी की जय हो। हम श्री धाम वृंदावन से मनमोहन दास, श्री टटिया स्थान, श्री स्वामी गुरु हमारे श्री स्वामी राधा बिहारी दास जी महाराज, टटिया स्थान, श्री धाम वृंदावन। हम ये कहना चाहेंगे महाराज, जो ये धरती पे महाराजा हुए, राजा हुए, और जो ये मोदी जी आ गए हमारे राजा इस देश में जो हमारे मोदी जी आए, जो जैनी आए, जो अपने को जैन बताते हैं, वो इनका शुक्रिया कि इन्होंने अपनी पता तो बताया कि ये जैन है, ये बनी है। और महाराजा जो जितने भी है तो खाली मुसलमानों को तो हमारे धर्म में, इस देश में बदनाम किया हुआ है इन लोगों ने कि फूट डालो राज करो वाला देश है। ये फूट डालते हैं मोदी जी और योगी जी, और फूट डाल के देश ये कर रहे हैं कि देश में फूट डालो और राज करो। इनका ये षड्यंत्र है। मुसलमान तो खाली बदनाम है इस टाइम। इस पर जो संघर्ष कर रहे सब हिंदू हैं। जैसे हैदराबाद में कौन सा वो है, वो अलग कबील का हत्यारा का वो कत्ल खाना, वो जैनियों का है। ये जैन क्यों नहीं करते गौ हत्या बंद? गौ माता राष्ट्र माता क्यों नहीं घोषित करते? अहिंसा की झूठी बात क्यों करते? अहिंसा की बात करते, हिंदू मुस्लिम को झगड़ा कराते। मैं अवधूत रामायणी, अनूप मंडल का एक सबसे छोटा भावी, अखिल विश्व गौ संवर्धन ट्रस्ट परिषद दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम लोग गौ माता राष्ट्रमाता विजय रथ यात्रा की तैयारी के लिए यहाँ मालिक के चरणों में, श्री अनूप स्वामी जी महाराज के चरणों में, मेरे साथ में मनमोहन दास जी वृंदावन दिल्ली से आए हुए हैं, आशीर्वाद लेने आए। और संसार को बचाने के लिए जो बात मालिक ने की है उसमें गौ माता को 9 गुणों का बता करके सबसे ऊपरी स्थान दिया है। असंख्य युगों से गाय पूजनते, ऐसा सोनी हरिचंद जी महाराज जी ने फरमाया है। तो गौ माता राष्ट्रमाता विजय रथ की यात्रा के तैयारी के रूप में आज यहाँ जो प्रतिवार्षिक सत्संग मेला होता है उसमें भी हम सम्मिलित हो रहे हैं। और सतयुग लाने के लिए और राक्षसी पाप को मिटाने के लिए और जैन बड़ियों का जो पाप चल रहा है, दुनिया के लिए खराबा हो रहा है, उसको उजागर करने के लिए सब साधु संत आगे आएंगे और सभी सनातनी हिंदू आगे आएंगे। और अभी जैन बड़िए लोग कोई दिल्ली में रामलीला मैदान में मीटिंग करके और सभी सनातन हिंदू धर्म के जो धार्मिक स्थल हैं, जो तीर्थ यात्रा स्थल हैं, उनको कब्जे लेने की बातें कर रहे हैं। उसमें जूनागढ़ गिरनार को उन्होंने टारगेट किया हुआ है। पहले 1 अक्टूबर को उन्होंने हमला किया था दत्त शिखर पे, फिर हम अनूप मंडल के साथ जा करके 6 अक्टूबर को जाके 7 अक्टूबर को बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और शंकराचार्य की भी अनुमति और सहमति और समर्थन लेकर के विरोध किया था। तो हम ये बता देना चाहते हैं कि वो सनातन हिंदू धर्म स्थलों को और तीर्थों को अगर कहीं भी छूने की कोशिश करेंगे या उसमें अतिक्रमण करने या घुसने की कोशिश करेंगे तो दुनिया के सबसे बदनाम घुसपैठिए के रूप में हम उनको रेखांकित करते हैं। और सनातन हिंदू, एक सनातन हिंदू इस बात का, पूरे विश्व में रहने वाला सनातन हिंदू उनकी इस बात का, इस दुस्साहस का घोर विरोध करेगा, ऐसी मैं घोषणा करता हूँ। बोलिए नकलांग देव की जय। शकील अहमद मेरा नाम है और जमात इस्लामी हिंद का सेक्रेटरी हूँ। आपके अवसर पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत एक धर्म प्रधान देश है। यहाँ पर अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग सालों से प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हुए आए हैं। हम जमात इस्लामी के लोग भी पूरे हिंदुस्तान में धार्मिक सौहार्द, मानवता, दया, करुणा और भाईचारे के लिए कोशिश कर रहे हैं।
तो जहाँ भी धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, मजहबी और धार्मिक लोग होते हैं, उनसे मिलना, उनसे सौहार्द की बात करना, ये हमारी जिम्मेदारी भी है ताकि हम पूरे भारत को मजबूत बना सकें। क्योंकि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई थी, मन ला यरहम ला युरहम, कि जो दया नहीं करता उस पर दया नहीं की जाती। तो दया की जो शिक्षाएं हैं, कृपा की जो शिक्षाएं हैं, भाईचारे और मानवता की जो शिक्षा हैं, उनका प्रचार प्रसार करने और जो भी हमारे देश में कॉमन बातें हैं, जो धर्मों के दरमियान समान बातें हैं, उन समान बातों को लेकर धार्मिक लोगों को एक मंच पर लाने की कोशिश करना और उनके ज़रिए से भारत को मजबूत बनाना, ये हमारी कोशिश है। और इसके लिए हम अलग अलग लोगों से मुलाकातें करते हैं। आज एटम पंडल का ये कार्यक्रम है, ये उत्सव है, तो उस अवसर पर यहाँ के लोगों से मिलने के लिए आए हैं ताकि भारत, जो असल भारत की तस्वीर है कि हम सब एक हैं, वो पैगाम लोगों के सामने जाए और हम सब मिलकर अपने भारत देश को आगे प्रगति और प्रगति की तरफ आगे बढ़ा सकें। तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें।